morning. Management accounting introduction of management accounting. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें क्या है पहले तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर बाय एनी कंपनी एनी बिजनेस. इट इज़ जस्ट ऑप्शनल at the discretion of management for their purpose to evaluate their performance of their means how they are performing. वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी मेजर करने के लिए इवेल्युएट करने के लिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं. देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एडवांस ऑफ द financial and costing, and management accounting is the combination of financial accounting and cost accounting. बराबर. चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जस्ट उसका मीनिंग, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट. इट्स अ टूल ऑफ मैनेजमेंट on the basis of which management can perform its functions like planning, controlling, decision making. It is a broad term and is concerned with all such accounting informations that are useful to the management. In simple words, the term management accounting is applied the provisions of accounting information for management activities such as planning, controlling and decision making. According to IC, यानी Institute of Chartered Accountants of England, any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently be regarded as the management. यानी जिस अकाउंटिंग से कोई भी बिजनेस अपना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, कैरी ओवर कर सकता है, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting information can help the managers identify the problems, then solve the problems and evaluate the performance. Means on the basis of management accounting, managers can identify the problems, means in which area there is a problem. And if problem is known, then you can find out the solution. And how you have solved, it is evaluated. That is your performance. In the word of R. Anthony, management accounting is concerned with the accounting information that is useful to the management. यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के लिए ही यूजफुल है. यानी इट इज नॉट फॉर आउटसाइडर्स, इट इज ओनली फॉर द मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू, बस डेफिनेशन इतनी काफ़ी है. हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी अभी बोल रहे हैं हम CA में, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, has defined the management accounting as a system of collection and presentation of relevant economic information relating to enterprise for planning, controlling and decision making. यानी इसमें डेटा सब कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना एंड प्रेजेंटेशन टू द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज. जिसको जरूरी है उनको सप्लाई करो इंफॉर्मेशन, जिससे मैनेजमेंट अपने फंक्शंस प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर पाए. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट, यूजफुल इन द डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा मिलता है उसके आधार से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि भाई बिजनेस कंटिन्यू रखना है, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट रेडीमेड परचेस करनी है या कोई प्रोडक्ट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना है, बराबर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या पुरानी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करनी है. ये सब डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आधार से ले सकते हैं. First one. Second, financial and cost accounting information. Already I have explained 5 minutes before. Management accounting is a combination of financial accounting as well as cost accounting. Financial accounting यानी historical data, cost accounting यानी estimated data. Both are covered under the management accounting. So all the limitations of cost accounting and financial accounting are overcome by the management accounting. Third, internal use. It is only for the management purpose, it is not for the outsiders, so it is useful for the internal management. Purely optional. It is not made compulsory by any law.
इट इज जस्ट ऑप्शनल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. कंसर्न विद द फ्यूचर, इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी फ्यूचर में क्या करना है उसके आधार के लिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं. कंसर्न विद द फ्यूचर हो गया. फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रेजेंटेशन, यानी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से पैराग्राफ वाइज, हेडिंग वाइज आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है. कोई कंपल्सन नहीं है कि ऐसे फॉर्मेट ही चाहिए, जैसे P&L अकाउंट में फॉर्मेट होता है उसी तरह इसमें भी फॉर्मेट चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. नाउ रिलेशनशिप द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी तीनों में डिफरेंस. डिफरेंस मैं करता हूँ कंप्लीट. डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी है और इंटरनल यूजर्स के लिए भी है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली फॉर द इंटरनल यूजर्स, मैनेजर्स, ओनर्स एक्सेट्रा. अकाउंटिंग मेथड्स. Financial accounting based on double entry bookkeeping system means every transaction has two effects. જ્યારે management accounting not based on double entry system. Statutory requirement. Financial accounting is compulsory to prepare under the Companies Act. बराबर, जो बिजनेस करता है उसको कंपलसरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग P&L बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा. मैनेजमेंट अकाउंट इज टोटली ऑप्शनल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. Analysis of cost and profit. Financial accounting show the profit or loss of the business as a whole. It does not show the cost and profit individual. यानी आपने P&L बनाया था FY SY स्टार्टिंग में शायद 11-12 में, तो प्रोडक्ट वाइज आप प्रॉफिट लॉस नहीं फाइंड करते थे, ब्रांच वाइज फाइंड नहीं करते थे, डिपार्टमेंट वाइज फाइंड नहीं करते थे. बराबर, यानी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको डिटेल में जो मिलती थी प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट, एक्सपेंस, वो ओवरऑल मिलती थी. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज भी डिटेल मिलेगी, तो आप इजीली इवेल्युएशन कर पाओगे पास्ट एंड फ्यूचर डेटा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड होगा, यानी पास्ट डेटा, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट. फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल, कॉस्ट, फ्यूचर, दोनों का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है. पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नॉर्मली ईयर टू ईयर बेसिस पर, फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर हम प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल वे में. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनी टाइम यू कैन प्रिपेयर, एनी टाइम यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट अकाउंट फ्रीक्वेंटली, मंथली, वीकली, डेली. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by the ICAI, but in the management accounting there are no standards prepared, no standards to follow. Next, types of statement prepared. इसमें P&L और बैलेंस शीट आएगी, जबकि सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ रिपोर्ट्स अपनी रिक्वायरमेंट के आधार से, यानी सेल्स कितना किया, कौन से स्टाफ ने, कौन से मैनेजर ने, बस कौन से डिपार्टमेंट का कितना सेल्स हुआ, सिर्फ यही डिटेल जाननी है. पब्लिकेशन एंड ऑडिट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट सब पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिकली करना पड़ता है, यानी न्यूज़पेपर्स और इसमें, क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी है. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी पब्लिश नहीं करना है, पब्लिकली नहीं करना है. मॉनिटरी, नॉन मैनेजमेंट. मॉनिटरी एंड नॉन मैनेजमेंट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी, क्वांटिटी, सब रिकॉर्ड होंगे. और कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंस. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज लिमिटेड प्रोवाइडिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरियल यूज, यानी इसमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड होगी जो मैनेजरियल यूजफुल है. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, कॉस्टिंग भी
और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा। मेन एम्फेसिस कॉस्टिंग में, मेन एम्फेसिस क्या है? हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन 3 फंक्शन है: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। टेक्निक एम्प्लॉय, कॉस्ट अकाउंटिंग में टेक्निक से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट विद कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइंड आउट द वेरियंस, व्हाई डिफरेंस इज देयर बिटवीन द एस्टिमेशन एंड एक्चुअल, वेरियंस एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सब कॉस्टिंग की टेक्निक्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सी टेक्निक यूज होती है? जो कॉस्टिंग की अभी मैंने बोला वो तो से है ही, और एडिशनल में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसर्च एंड टेक्निक्स एटसेट्रा। इवोल्यूशन, कॉस्टिंग की इवोल्यूशन क्यों हुई, यानी इमर्ज, शुरुआत क्यों हुई? टू रिमूव, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, costing is emerged, evaluated, but to remove the weaknesses, limitations of financial and costing, management accounting is prepared. Statutory requirement, कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसके लिए कंपलसरी मेंटेन करना, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज टोटली ऑप्शनल। डेटाबेस, कॉस्टिंग में जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं किसके आधार से? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के आधार से, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और कॉस्टिंग दोनों का डेटा कंबाइन करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन शॉर्ट बेसिक याद रहना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं इंट्रोडक्शन में। स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कॉस्ट अकाउंटेंट इज प्लेस एट अ लोअर लेवल, यानी कॉस्टिंग जो प्रिपेयर करता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बराबर, और वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में आता है, मैनेजमेंट के नीचे एकदम, मीन्स कॉस्ट अकाउंटेंट इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जनरली प्लेस एट द हायर लेवल देन कॉस्ट, यानी पहले मैनेजमेंट बराबर, उसके नीचे मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसके नीचे कॉस्ट अकाउंटेंट, मीन्स हु इज हायर अथॉरिटी एज कंपेयर टू each other, यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज हायर अथॉरिटी देन कॉस्ट अकाउंटेंट। इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं हो तो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल करने के लिए यू मस्ट हैव फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। हो गया, मेन पॉइंट्स सब कंप्लीट हो गए। अब टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सी टेक्निक्स यूज होती है? तो नॉर्मली सब पता ही है, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है आगे, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव फाइनेंशियल, डिफरेंशियल कॉस्ट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफ टेक्निक्स, रिस्क एनालिसिस, लर्निंग कर्व, वैल्यू एनालिसिस एंड वर्क स्टडी। ये रट्टा ही मारना है आपको। और फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट इज प्लानिंग। प्लानिंग 3 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म बराबर। लॉन्ग टर्म प्लान इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म, एंड टू अचीव द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वी मस्ट हैव ए ब्रिज बिटवीन दिस टू विच इज अ मीडियम टर्म। सो इसीलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्क है ये। सेकंड, कोऑर्डिनेशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट अचीव करने हैं बिजनेस के तो हर एक डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, सबका कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कंट्रोलिंग, आपने एस्टिमेट तो कर दिया है, प्लानिंग कर दिया है, अब प्लानिंग को फॉलो करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी है स्टाफ से। तो स्टाफ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, फॉलो करती है कि नहीं हमारी पॉलिसी,
ये हमें उन पर कंट्रोल करना है। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट को जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस प्रोडक्ट की, जिस डिपार्टमेंट की, इजीली वी कैन प्रोवाइड फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके लिए टेक्निक यूज होती है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जिससे हम एनालिसिस कर पाएंगे हाउ वेयर द बिजनेस इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर बिजनेस। क्वालिटेटिव, इंफॉर्मेशन सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी इंफॉर्मेशन की हम कंफ्यूज उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर क्वालिटी वाइज यानी जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम आसानी से डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड है। टैक्स पॉलिसी, हाउ टू सेव टैक्स, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन शुड बी टेकन एट द राइट टाइम बाय द राइट पर्सन, बराबर, विच कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, वो हमने डिफरेंस जो कर लिया बस वही है, बराबर। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन की थियरी कंप्लीट हो गई, बराबर। बाय।